is without the object, if class is without the object, it means there is only one pointer in a stack. If class, कितने बच्चे बोले हाथ उठाकर क्लास में नहीं आया? आज क्यों आ गए थे? बदतमीज। मैं तो आपको सेंटर बहुत खुशी हो गई मुझे। If there is a class without an object, then what is class? I called to Jivana Caesar yesterday about this topic. He says to me simply, there is a class and object. You simply forget for a moment the stack and heap. Don't go there. Don't go there. I can give a several link, stack and heap, you can go for it. He has given the link yesterday. It's perfect. You just think of there is a class without an object. Then what is class? Does class cannot exist without an object? I said yes, it can exist. So if class exists without an object, it means there is a pointer of that class. It means A space A1, not new. Not new. Not new. Not new. Not new. He was on a phone, across 45 minutes with me on a phone. बंदा पैसा नहीं रखता है फोन के ऊपर. There is a class without an object. Now you start speaking. I raise the question. He raised the question. No. You first say what you know about an object without the class. I said if class is there doesn't mean object is needed. But object cannot have without class. But class can exist without an object. It means if I say class is a reference type, if someone say class in dot in Java is a reference type, it means there is a pointer. There is a pointer. But that pointer cannot hold. Beta sunna takes a place. There is a class can exist without an object. But there is an object cannot exist without class. Because I cannot directly work on the object. So he has given yesterday a great example what is encapsulation. I cannot directly work on an object. I work by the class. That is called encapsulation. Hiding of implementation is called encapsulation. It means, uncle, I cannot directly touch the heap. I cannot touch directly heap. What does it mean? What does it mean? There is a pen drive, there is a data storage. How you can transfer the file in pen drive, you tell me. To transfer the file in a pen drive, I want to perform operations. I require CPU clock time, CPU processor time. I cannot directly work on a heap. The definition of heap is you cannot directly operate on the heap. So encapsulation means hiding of implementations. So for our program, heap is totally encapsulated. I work by the class because I have got a pointer. I call the function by the pointer. Okay, I call the function by the pointer. You say object dot. No. It's not an object dot because you say my class is a reference. My class is a reference. It means I am creating a pointer of that reference. I am creating a pointer.
of that reference means this, means this. So pointer is pointing the base address of A. A1 is a pointer, is pointing to base address of A. And you have got a function. You have got a function. Public void show. Listen. उसी लिंक का मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा. He says A1 is a pointer of A type. But fortunately, or you can say unfortunately, the man who doesn't know C or C++, is learning a Java and C Sharp. He's doing a major mistake. But we never write a star at the point of Java and C Sharp. Because I say class is a reference type. I say class is a reference type. So if class is by default, it is a reference type. Why do we write a pointer? To say I'm a reference type. The pointer is not just a reference type. Pointer is called reference. So Ankar, I don't need to write explicitly in Java and C Sharp A space star A1. But it is equivalent to what you are. Star A1. Because my class is in C Sharp as a reference type. It means there is a fixed nature. There is a fixed nature. A1 always will point to the what? A. So A1 has got a fixed nature because A1 is a pointer, is pointing to A. It is a fixed nature. It is fixed by nature. Or nature by it is fixed. Stack location, stack memory is fixed by nature. It is nature by fixed. But heap is a storage medium. A storage medium. They can have data of 20 KB, they can have data of 40 KB. Because heap is a medium. They can have a data only. So now here, if A1 is of A type, it means A1 is not a A1. It is a pointer which is pointing to what? A. And where is A? In a stack. This means not heap is made. Not heap is made. So that this time A1 will point to A. A1 will not point to other location. I have a function within a class where function stands. Function is in stack location. Because function perform the operation. The prefix operation, the postfix operations. In case of push and pop in data structure, you go for referring a Dynamo book of data structure. The push and the pop operations is performed in what? Stack. The function resides in the memory of a stack. Never be heap. Never be heap. Never be heap. Because heap is a resultant storage medium. You can work on a stack, uncle. You cannot work on the heap. You cannot work on the heap. I have downloaded several tools which can work on the stack, and there are only few tools which will work on the what heap. The heap is from us totally encapsulated. It is a last storage medium. When the operation takes over, is completed, resultant goes to heap. Now, how you can prove a function is a part of a stack? How you can prove? So not exactly. How you can prove a function is a part of a stack? Second question. If class is having an index, how you can prove? I know int is a value type, and value type goes to what? A stack. But this time x is a member variable of what? A. So x needs memory, x needs location, x needs location,
X wants to hold the data. It is not a pointer. Pointer is called A1. But X is not basically pointer. It wants a memory location. Getting? X needs memory location, or A1 is a pointer. How I can assign the data. Take it as example 12. Take an example. But when you run the application, uncle, X not exist. X needs location, but not yet location is made to hold a data called 12. But A1 is of pointer of 8. And how pointer can hold X? How pointer can hold X? Because pointer A1 is a pointer. I have made one program yesterday. Look at the copy star X. I was trying to hold Jhankar, not yet succeeded. Then I have allocated the memory for that by new operator. I have entered the data by COT and SIN. So how A1 can hold X? Because not yet the memory for A1 is what? Allocated. Another question देखिए क्या है? How you can prove function is a part of a stack, and how you can prove the variable called X is a part of heap. I mean part of a stack or heap. There is a dilemma in this picture. He says to me by phone, Sandeep, what is A1? I said, sir, A1 is a pointer of A type. Your answer is giving the next question answer. If A1 is a pointer, lady, how pointer can hold data? How pointer can hold X location? Because pointer is pointing toward A location. Unless and until, if you don't allocate the memory, for whom? For A. You allocate the memory for A and then hold their X. So this variable is a stance variable. It is a member variable of a class. There is a demand to hold this variable into one location, and according to your program, when you haven't allocated a location for anywhere, this program shows A1 is of only what? Pointer. And how pointer can hold data? Pointer is smart to only hold memory address. Pointer cannot have a data unless and until, last class yesterday, unless and until if you don't allocate the memory for that pointer. Come back to data structure. See data structure. Go for single linked list. I make a first node. If I don't allocate the memory for that node by malloc operator, malloc is basically operator. I mean it's a function. If you don't allocate the memory for that node by malloc, you can't hold the data. But if data structure is made, means several nodes are made, then I want one pointer which can navigate to that all the nodes, and that pointer is not basically allocating the memory. It is pointing to the base address. कि pointer के पास कितना 4 बाइट by default है. उस 4 बाइट में कल दिखाया था. उस 4 बाइट में कल क्या बोलो? रूट नोड का क्या बोलो? बेस एड्रेस है. तो for traversal in linked list or doubly linked list, I don't want to allocate memory for me because I got a point is having a 4 bytes only. It's a reserved memory address. But if you want to hold data in that point, node, if you want to hold data in that node, you have to allocate the memory, the node by the malloc of function. So now if you want to hold uncle, if you want to hold X, but A1 cannot hold because A1 is a pointer. If you want to hold X, you have to allocate the memory, point 1. So I have to prove today, function is not basically part of heap. First question, this question लिखते चलो. Function is not a part of heap. कैसे प्रूफ करो? But you cannot prove Deepak Gupta by Java and C#.
You have to put a data structure on, because you know there is a class and object in you right now. But when a man works in IT 5 or 10 years, he knows no class is there, no object is there. There is only one pointer in one box, and there is one memory location. That location is basically pointing by the pointer. That's it all. You fill class and object. They don't fill class and object. He fills class is a stack with a pointer and memory location called key, and that is pointing by the pointer. Now, second question: how you can prove? How you can prove X is a part of a stack or key? Third question. Third, सबका लिंक मेरे पास है अभी. Third question. Now I have a int y. Int y. Third question. I have an int y. Y is not beta. Instance variable. This time. It's not a member variable. It's not a member variable. So why do we create a heap called memory? तीन क्वेश्चन हो गए मेरे पास. उसने मेरे को जवाब किसी क्वेश्चन का नहीं दिया. तो ही इज ए मैन ऑफ R&D. पढ़ाना किसी को पसंद नहीं करता है. आप उनके पास जाओगे और उनके 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, बिकॉज वो मास्टर एकेडमिक नहीं रहा कभी. जब उनके पास प्रॉब्लम में गए हैं, हमें आंसर नहीं मिला है, हमें कुछ और आंसर मिला है, और उससे मेरा फंडा क्लियर हुआ है. तो पहले 3 क्वेश्चन का जवाब खोज के लाओ कि तुम x को होल्ड करने के लिए क्या करोगे. देन व्हेन योर पॉइंटर इज एनफ. तुम A1 मत देखो संदीप, तुम ये देखो. क्या देखो? तुमने खुद कहा है उनको जावा डॉलर नहीं आती है. तुमने खुद कहा है कि देयर इज ए इज ए व्हाट इन योर लैंग्वेज देयर इज ए क्लास इज कॉल्ड रेफरेंस. अंकल फिर ये क्या है? अरे बदतमीज, ये ए क्या है? ये पॉइंटर है उस रेफरेंस का. ओ माय गॉड, ये पॉइंटर है उस रेफरेंस का. और हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इज ए कीवर्ड टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. थप्पड़ मार के भगा देंगे वो बाहर. So he knows only C and data structure. And this Sadarji is having a very good friendship with the Jeevan of Sija. Very good friendship. बस उनसे पढ़ के ना जिंदगी सवर जाएगी. पहले पढ़ लो उनसे जब तक यहाँ पे हो. उनसे C क्लास कर लो, जिंदगी सवर जाएगी. तुम्हारे बेस ऐसे हो जाएंगे, शेप में आ जाएंगे. तो हमने अपनी लाइफ में 2-3 गुरु को रखते हैं अपने साथ. मेरी बैंक बैलेंस, मेरा मकान सब बेकार है मेरे लिए, किसी काम का नहीं. ये मुझे कल धोखा दे सकता है, मेरा वो गुरु लोग धोखा नहीं देगा. नॉलेज है, बड़ा नॉलेज यार. तुम ए को क्या बोलते हो? ओ माय गॉड, ही सेज इफ ब्लडी क्लास इज ए रेफरेंस, देन व्हाट इज इट? इट इज ए पॉइंटर ऑफ दैट रेफरेंस. ये लिखो ना, अच्छा लगेगा देखिए संदीप. ये लिखो, इसका मतलब अंकल इस लाइन को अगर आप देखो तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा. अगर देखो बस अंतर है, ये यूजर डिफाइंड टाइप है. बोलो कौन है? ये बोलो क्या है? प्री डिफाइंड टाइप. ये उसको सपोर्ट नहीं करता है, वो सी का बंदा है और हम यहाँ सी को बस के बंदे हैं. बस हमें तुम्हें यही अंतर. तो बेटा व्हाट इज ए? डोंट ट्राई टू से राइट नाउ आफ्टर द क्लास एनीवन. ए इज ए यूजर डिफाइंड टाइप प्लीज. ए इज ए रेफरेंस पॉइंटर ऑफ दैट रेफरेंस, और ए इज ए पॉइंटर टू दैट रेफरेंस. और ये क्लास, ये रेफरेंस का है बोलो स्टैक में. क्लास रेफरेंस का होगा, पॉइंटर का होगा. पॉइंटर का होगा, पॉइंटर किधर होगा बेटे? पॉइंटर को आप समझो, रेफरेंस को. रेफरेंस का मतलब क्या समझते हो? पॉइंटर इट हैज गॉट अ फिक्स्ड नेचर. बेटा अगर किसी चीज का नेचर फिक्स है तो याद रखना बेटा, वो हिप में नहीं हो सकता. वो कहाँ होगा बोलो? स्टैक में. स्टैक में वो होगा जो फिक्स बाय नेचर.
और पॉइंटर की साइज फिक्स है, 4 बाइट या 8 बाइट। डॉट नेट में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका 8 बाइट है। आप डॉस टर्बो ले आओगे, आपको दिखाएगा 4 बाइट। 16 बिट पे जाओगे बेटा, आपको दिखाएगा 2 बाइट। और अभी जितने सिस्टम में खोलता हूँ वहाँ मेरे को मिलता 8 बाइट। हो गए बेटे सारे क्वेश्चन। चलो इसको बंद। उसने कहा तुम संदीप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हो जावा डॉट नेट। कैसे प्रूफ करें? अब प्रूफ देखो, उसका साइकोलॉजी देखो जरा। न्यू कंसोल, इससे बेटे यहां बोलता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। उस पॉइंटर को तुम ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे हो? ऑब्जेक्ट डेटा सेट, किस्मत खराब, डेटा सेट स्पेस डीएस। अरे बंदर, डीएस क्या बोलो? पॉइंटर है उस डेटा सेट मेमोरी एड्रेस का। और साला गलती से अंकल ने लिख दिया डैप डॉट फिल और डीएस में डाल दिया और एक्सेप्शन आया ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। तो सिलार कहां समझ रहा है ऑब्जेक्ट? वो तो पॉइंटर समझ रहा है। ये तो सारे डेटा सेट में टेबल कैसे फिल करोगे? अकल नहीं है तुम्हें? क्या लिखा है तुमको मैसेज? ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। उस पॉइंटर के पास झंकार, उस पॉइंटर के पास बेटे उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस नहीं है। क्या नेट चल रहा है, फॉर्स नंबर्स का चल रहा है। आ जाएगा, चलो समझ गए बेटे? ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। पहले इस लाइन का तो मेरे को मीनिंग समझा दो। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट मतलब बेटे जो पॉइंटर बनी है उसमें मेमोरी लोकेशन नल पड़ा है। उस पॉइंटर में मेमोरी लोकेशन क्या है आपको पता है? झंकार से मैं क्या बोल रहा हूँ? हम ये लिख सकते हैं, हमें लिखने का पूरा राइट है। पूरा क्लास ए और क्लास बी पूरा हमें राइट मिली है लिखने की, स्पेलिंग को छोड़ो। अब यहाँ पे आके लिख दो बी स्पेस B1 बी स्पेस B1 वट। आपको बेटे पॉइंट का भी एरर नहीं मिलेगा। तू पता नहीं क्या समझ रहा, हमें ये पता है कि साला एक पॉइंटर है हमारा राइट, इसके पास क्या बोलो? नल लोकेशन। इसको बोलते हैं बेटे ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट सेट। अब बताओ इस B1 में डेटा कैसे आएगा? बेटा B1 तो बोलो क्या है? बोलो पॉइंटर है। इस B1 का मेमोरी एलोकेट करो। नहीं करे, B1 का मेमोरी एलोकेट मत करो, एक लोकेशन का मेमोरी एलोकेट करो और उस लोकेशन का मेमोरी एड्रेस किसको प्रोवाइड कर दो? इस B1 को। अब B1 के पास नल नहीं होगा। अब जो तुम्हारी लोकेशन बनी उसे खत्म करना है तो गार्बेज कलेक्शन लगाओ ना। चलो अब देखो हैश इंक्लूड IOStream क्लास माई पीटीआर। अच्छा नाम है।
अंकल नाम को छोड़ो, ए दे दो। जैसे आपने ए लिखा ना, ये एक पॉइंटर हो, और किसको पॉइंट कर रहा है बोलो? क्लास को। अभी इसके ऊपर किसी का मेमोरी लोकेशन नहीं है, इसे नल मिनिमाइज कर। या दोबारा फिर से अंकल इस B1 के पास B का मेमोरी एड्रेस है और B1 के पास किसी और का मेमोरी लोकेशन नहीं है, इसलिए बोलता है मेरे को डॉट जावा ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। और यार न्यू लिखना तो भूल गए करा। अब आ जाओ, चलो यहाँ पे इसे बंद करो, वर्ड में हालांकि अब सीरियस हो जाओ अगले 15 मिनट तक। ये मत लिखो, ये लिखो। और झंकार ये सोचो, ये हमने जो लिखा है जावा C# में लिखा है, क्योंकि मेरी क्लास क्या बोलो? रेफरेंस टाइप। अगर मेरी क्लास अगर रेफरेंस टाइप है, उसका पॉइंटर क्या होगा बोलो? उस रेफरेंस को पॉइंट करेगा। तो मेरी ए क्या बोलो? एक रेफरेंस, और ये पॉइंटर जो है उस रेफरेंस का एड्रेस रखता है। समझ गए? अब आ जाओ बेटा, अब तुम लिख दो int x। अब इस लोकेशन पे तुम जाओगे, इस लोकेशन पे तुम कैसे जाओगे? A1 एरो ऑफ। बेटे जाके डिबगर चला के देखो तरीके से, आपको डॉट नहीं मिलेगा, एरो मिलेगा वहां पे। A1 एरो ऑफ, इसको हटा दो। अब यहां डाल दो फंक्शन पब्लिक void show। अब देखना बेटे, A1 एक पॉइंटर है जो उस A को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर जब भी होगा झमकार से स्टैक पॉइंट। फंक्शन का ऑपरेशन जब भी होगा स्टैक। क्यों? वहां चलता है पोस्टफिक्स और क्या चलता है बोलो? प्रीफिक्स। वहां चलते हैं नोटेशन, चलते हैं नोटेशन, और नोटेशन जो होते हैं वो आपके स्टैक में। आपने देखा होगा बॉक्स के ऊपर बॉक्स के ऊपर बॉक्स। There is a memory location within a stack is called a, और इसको पॉइंट कौन कर रहा है बोलो? बस फिगर को समझो। memory stack, ठीक है? A is a location within a stack and it is pointing by the what? A1 के पास एक एड्रेस है, A1 के पास एक एड्रेस है, और फंक्शन तुमने कहां डिक्लेयर किया है? It is a 102 is called show। इससे फिर वो हमारा साइट के ऊपर
there is a 102 is shown. When A1 can point to A, why not A1 can point to what? 102? Because 102 is within the what? 101. When A1 can point to A, when A1 once, A1 can point to A, why not A1 can point to the inner element of A for data structure, for XML? When you get a root reference of any XML file, you can put inner file, inner child, child node. If you have gone to XML namespace, then child node, inner child, child within child. A1 can point to A. Why not A1 can point to what? Inner element of A. Getting? Because A is a what? A reference. यार इसके अंदर बैठेगा होते, इसके अंदर होते, यहाँ इसके अंदर विद इन अ फंक्शन। अब 102 के अंदर आते मेमोरी एड्रेस। अब देखो ये लिखा, चलो एक काम करो, पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, ठीक से देखना बेटे, मैं यहाँ पे, और आपको पता है A1 के पास का एक एड्रेस है और A1 के पास एक एड्रेस है और क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। क्यों? इस A1 के पास एक एड्रेस है, A1 के पास कोई मेमोरी लोकेशन नहीं, किसी को पॉइंट कर सकता है। A1 के बेटे एड्रेस में किसका वैल्यू है? एक ही वैल्यू है। ये बंदे के पास कोई पॉकेट नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है। He doesn't have any pocket अंकल। इसने 5 सामान खरीदे, इस गधे को दे दिया। अब इसका ध्यान उसकी पॉकेट पे, इस सामान इसका है। He is a pointer of that pocket type। चलो वो भी नमूना नहीं है। ये 5 सामान खरीद रखा है, अभी क्या करेगा? ये बंदा उस सामान को देखेगा और होल्ड नहीं कर सकता है। पास जो बंदा ने क्या बोला कल रात में फोन पे, ये फंक्शन संदीप बेशक इस पॉइंटर से कॉल हो सकता है। मैं गया शॉप पे, 2 किलो आलू 3 किलो चावल बोल दिया। उसने कहा भाई साहब मेरे पास पॉलिथीन नहीं है देने के लिए, हम पॉलिथीन नहीं देते हैं। मैं क्या करूँ यार? सोचा 5 मिनट 2 मिनट में सोचा, मैं रुको मैं लेकर आता हूँ। जब तक नहीं गया मैं उस लोकेशन को देख सकता हूँ। तो 101 ये बंदा 101 को देख रहा है और 101 के अंदर बोलो कौन है? 102 को देख रहा है। बट 102 अगर कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो A1 होल्ड नहीं कर पाएगा। तो बदतमीज, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। फंक्शन पॉइंटर डेलीगेट के ऑब्जेक्ट में फंक्शन का रेफरेंस है। चलो इस फंक्शन को पहले कॉल करो, सी आउट दी। अंकल मैंने फंक्शन कॉल करा, उस फंक्शन ने मेरे को वैल्यू नहीं दी। जो वैल्यू नहीं दी, किस बात का हीप, किस बात का मेमोरी लोकेशन? दिस प्रोग्राम is similar to Sadarji class data structure. How char x array of 20 elements, Shankar, SL technologies. And second is called char star PTR. PTR is equal to ampersand of that x and star x, star plus 1, star plus 2. I can get JHAN. तो
So why do we make an object? We hold the data in that object and we access by the pointer of that class by calling a functions. बेटे इनकैप्सुलेशन सुनो जीवन सीधा के मुंह से, फंक्शन के बिना तुम अचीव नहीं कर सकते हो इनकैप्सुलेशन। क्यों? आज तक इस बुक्स में ऐसी कोई टॉपिक नहीं बनी जब डायरेक्टली ऑब्वियस डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर सको। उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम तुमको पॉइंटर दे रहे हैं और पॉइंटर कॉल कर रहा है फंक्शन को, और फंक्शन डेटा बोलो कहां से ला रहा है? उस हीप से ला रहा है। नाउ यू राइट हियर A1 एरो ऑफ शो। ना बेटे लेफ्ट पे जाके सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, शंकर पूरा खो जाओ। ये बेटे फंक्शन कॉल भी है। ये फंक्शन हमें डेटा कहाँ दे रहा है बच्चे? साले मेरे पॉइंटर में 4 बाइट पड़ी हैं। मैं उस मेमोरी एड्रेस के अंदर फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। मैं अपने मेमोरी एड्रेस में उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, बट अगर वो फंक्शन को वैल्यू देगी तो मेरी मेमोरी एड्रेस होल्ड नहीं कर पाएगी। इट इज रिजर्व मेमोरी। अच्छा रिजर्व है, स्टैक में डालो उसको। तो बेटे जो चीज फिक्स है, रिजर्व है, वो कहां जाएगा बोलो? स्टैक में जाएगा। जो डायनामिक है वो हीप है। चलो इसे कॉल करो, इसे कॉल करो, गधे खो जाओ दीपक गुप्ता। इसे कॉल करो। ये मेरा प्रोग्राम नहीं है बेटे, उन्हीं का प्रोग्राम है। 0 एरर बिल्ड। डार्लिंग हमने मेमोरी एलोकेट नहीं करी। मेरे पास 4 बाइट का एड्रेस है। भाई साहब रील साबुन दो, पेन दो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। जब लेकर आया बहुत मेरे पास पॉलिथीन नहीं, सॉरी। आपको होल्ड करना पड़ेगा उस आइटम को, और होल्ड करने के लिए बेटे आई हैव टू मेक अ व्हाट? मेमोरी। अब सुन करे, मैं उस मेमोरी का पॉइंटर हूं। क्या हूं बोलो? मैं घर तक, जब तक घर जाऊंगा उस गधे को देखता हुआ जाऊंगा। मैं उस मेमोरी लोकेशन को बोलो कौन? पॉइंटर हूं। रूल नंबर 2 बांधने गया था, स्टैक और हीप सर से बढ़ा के ही लाया। इसमें प्रोग्राम स्टैक चल रहा है। 102 के अंदर मतलब क्या? इंट एक्स में डाल दिया 12। ये बेटे प्रोग्राम को लाइफ टाइम संभाल के रखो। और क्या लगा दिया? सी आउट व्हाट? सर ये फंक्शन का जो आउटपुट है जो हमें मिल रहा है, ये अपने पास वेरिएबल रखता है अंकल। ये फंक्शन अपने में क्या रखता है बोलो? वेरिएबल। उस बंदे ने मेरे को क्या दे दिया बोलो? पॉलिथीन पैक करके दे दिया। और दूसरे कहते नहीं कहता मेरे पास पॉलिथीन नहीं है, तो अपना लोकेशन लेकर आओ। एक्स में क्या अंकल 12 पड़ा हुआ है, तो अंकल 12 जो है ये किस लोकेशन में है? ये फंक्शन के लोकेशन में। यहां देखो ना फिगर, यार ये देखो, अभी दिखाता हूँ लिंक चिंता करो। ये सेम फिगर है वहां भी, अब तो अच्छे से बना हुआ है। हाँ आऊंगे। I have called a function without having any variable. I don't feel I have to have memory location to what? Hold the data. Second example I have taken. The function is having a local variable. अब बेटे वेरिएबल क्या है फंक्शन के अंदर? अरे यार तुम समझ क्यों नहीं? जो मेरे पास 4 बाइट है, जो मेरे को मेमोरी एड्रेस मिली है, उससे मैं सारा काम कर रहा हूं यार। और ये 4 बाइट जो फिक्स है ये नहीं बदलेंगे। ये बदलेंगे कब? जब तुम बिट को बदलोगे, बिट को 32 से 64 बिट में। ये मेरी मेमोरी एड्रेस है। हम इस पॉइंट से बैठ के 10 इसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और उस ऑर्डर की अगर वैल्यू आएगी मेरे पास, हमें होल्ड करना पड़ेगा। सुन लो फिर, व्हेन हीप इज नीडेड बेबी, पल ये पता करो करे तुम। व्हेन हीप इज नीडेड, कोई चीज अगर उस लोकेशन में जाना चाहता है, उसके लिए आपको मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा।
कल आपने जीवन सर ने क्या कहा कि आपके फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है अंदर आपको हीप की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उस वेरिएबल का जो मेमोरी लाइफ टाइम है विद इन ओनली फंक्शन है। ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। एक्स इज नो मोर, एक्स इज नो मोर। अब आ जाओ मेंबर वेरिएबल क्यों बोलते हैं अब वो सुनना। पर इसको फर्स्ट रूल नंबर 1 हो चुका है, ऐसा था। ये रूल नंबर 2 है। हम सारा काम पॉइंटर से ही कर रहे हैं। एस्केप, बिल्ड, कंपाइल, अगेन बिल्ड, अगेन एग्जीक्यूट। अंकल को एरर नहीं आ सकता है, जीवन सर का बोला हुआ। और रूल नंबर 3 पागल बना देगा मेरे। अब बोलता है रूल नंबर 3, आप इसको यहां से निकालें, इसको यहां से निकालें। कट। अब तो बेटा साइन करके दो। बनने का लॉजिक तो कैसे मारा मेरे को। अब तो चले साइन करो फंक्शन। ये एक्स कहां जाना चाहेगा अंकल? किसी लोकेशन के अंदर। और जो कॉल कर रहा है वो लोकेशन नहीं है, वो पॉइंटर है। अगर अंकल फंक्शन हीप में होता तो मुझे इस A1 का मेमोरी एलोकेट करना पड़ता। अब सोचो अगर अंकल फंक्शन हीप में होता, सोचो क्या होता। ये बंदा पॉइंटर है, ये नमूना हीप है और फंक्शन चला पड़ी है हीप के अंदर और ये कॉल कर रहा है हीप के फंक्शन को। अंकल कॉलिंग में ही खत्म हो जाता सब कुछ। अभी क्या है, मेरे स्टैक में पॉइंटर है प्लस फंक्शन। तो जावा और C# इनलाइन प्रोग्रामिंग सपोर्ट कर रहा है। फंक्शन प्लस पॉइंटर इन केप्ट इन स्टैक। मैं पॉइंटर हूं अंकल, ये जितना आप देख रहे हो सर, ये सब मेरे फंक्शंस हैं। बट इसको ऑपरेट करने के लिए भगवान वो दिन ना आए, इसको ऑपरेट करने के लिए बाहर के बंदे को बुलाना पड़े। मैं इस बॉडी का पॉइंटर हूं और जितने सिग्नलिंग हो रही मेरे ब्रेन से हो रही है, न्यूरो सिस्टम। एक बॉडी पूरी आपकी पॉइंटर है और उसके एलिमेंट्स है वो क्या बोलो आपके, एक ब्रेन क्या पॉइंटर है, उसके बॉडी के एलिमेंट्स क्या बोलो, फंक्शंस है। तो स्टैक में क्या और हीप में क्या है? स्टैक में आपका फंक्शंस पड़े हैं और जो पॉइंटर है वो स्टैक में। अगर अंकल फंक्शन अगर हीप में होता तो पॉइंटर से फंक्शन जब कॉल होता तो पॉइंटर अपने लोकेशन से निकलकर उस हीप के लोकेशन में जाता उस फंक्शन को कॉल करने के लिए। अगर फंक्शन हीप में होता अंकल तो मतलब मैं इस A1 का मेमोरी एलोकेट क्यों नहीं करा? फंक्शन पॉइंटर इन C, आप निकाल के देखा संकाल बेटा C के बुक में एक फंक्शन को कॉल करने के लिए हम पॉइंटर बनाते हैं, फंक्शन पॉइंटर इन C, और उसकी मेमोरी एलोकेट नहीं करते। डेलीगेट की सुन बेटे सुनो, अब तुम जाके पढ़ो डेलीगेट। अब जाके तुम जीवन सीधा को साले बोल, मेरे फेसबुक पे हैं, मुझे सब डेलीगेट पढ़ाओ। पता तेरे से पूछेगा पता तू डेलीगेट क्या जानता है? हाँ थोड़ा पंजाबी टोन है आपके, मुल्तानी है वो, उनका नॉर्मल हिंदी नहीं होता है। डेलीगेट के ऑब्जेक्ट में क्या है? डेलीगेट के ऑब्जेक्ट में क्या है? फंक्शन का रेफरेंस है, सब वो मार देंगे आपको जान। पता क्या बोलेंगे? अरे बदतमीज, एक पॉइंटर में फंक्शन का बोलो क्या है? रेफरेंस है। डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्या है? वो तो पॉइंटर है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब क्या बोलो? पॉइंटर है। सारे पॉइंटर्स हैं, बस अंतर है वो जो मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट कौन कर रहा है बोलो? ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। बस सब कुछ अंकल यहीं पे छिपा हुआ है, इसी लाइन में पूरी आईटी चल रही है अब तक, इसको हम छोड़ के निकल जाते हैं। इसी में सब कुछ है, बस अंतर इंट की जगह बोलो कौन है? क्लास है। अरे बोलो यार, और खुश वाले तुम बोल तो इंट क्लास का बोलो रेफरेंस टाइप है। बंदे का लॉजिक तो देखो, एक्स इंट स्टार एक्स, ये आप ऐसे लिख दो, ऐसे
कैर स्टार टी, सब कुछ अंकल यही है, बस अंतर है कि कैर की जगह बोलो कौन है, क्लास है। जब कैर को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, क्लास को क्या बोलो, कस्टमाइज कर सकते हो। और इस पॉइंटर से एक फंक्शन वाले कॉल करना है तो फंक्शन पॉइंटर बनाते हो। एक काम करो, एक क्लास बना लो, उसमें फंक्शन रख लो। एक सिंगल मेमोरी लोकेशन के अंदर बोलो क्या है, डिफरेंट क्या बोलो, मेमोरी एड्रेस है और पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। एक ही लोकेशन है बेटे स्टैक में। और जितने फंक्शंस है वो क्या उसी स्टैक के अंदर है। अब आ जाओ थर्ड केस बेटे, ये केस नहीं चलेगा गुरु, यही नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स कहाँ जाना चाहेगा बोलो, आपने खुद कहा एक्स क्या बोलो, मेंबर वेरिएबल है। अगर अंकल मेंबर वेरिएबल है, ये कहाँ जाना चाहेगा बोलो, किसी लोकेशन में। और ये पॉइंटर्स आप मेरे को देख रहे हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं आपको 10 रुपया दूंगा, आपको पॉकेट में होल्ड करना पड़ेगा। आपने कहा पॉकेट मेरे पास नहीं है, तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। देखना बेटे थर्ड पॉइंट, ना खड़ा करते साले, एक्स इनिशियलाइज फंक्शन कॉल होगा, बट एक्स की वैल्यू में जाएगी 12, बट बेटे एक्स कहाँ जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि तुमने क्या बोला, ये एक मेंबर वेरिएबल है और स्टैंस वेरिएबल है। और रियल वर्ड पूछ रहे बेटे, इसको बोलते हैं स्टैंस वेरिएबल। ये हुआ आपका, ये हुआ लोकल वेरिएबल हुआ, लोकल ऑटो बोलते हैं इसको। ये बेटा जो है, आप मेंबर भी मत बोलो, अच्छा वर्ड बोलो, इंस्टेंस। और क्या देखा, एक पॉइंटर में एक और एड्रेस पड़ा है, वो डेलीगेट है यार। एक पॉइंट सुन बेटे, एक पॉइंटर में एक एड्रेस पड़ा है, लेकिन एक पॉइंटर में स्टैक का मेमोरी पड़ा हुआ है। अब देखिए अंकल, प्रोग्राम 3 केस है, थर्ड केस है। पहला केस हमने ऐसा बनाया था, सेकेंड केस हमने एंड को ही भी डिक्लेयर किया था, थर्ड केस हम एक्स को वहां रखते हैं और यहां से स्लाइस करते हैं, सारे पोल खुल जाएंगे। चाहे फंक्शन के अंदर कुछ भी रखो, सब स्टैक में जाएगा। बट तुमने यहां अगर डिक्लेयर करा है, वो स्टैंस है, वो मेमोरी में जाने का ट्राई करेगा, बॉक्स के अंदर, मेमोरी ब्लॉक के अंदर। और उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस कौन रख रहा है बोलो, इवन रख रहा है। अब देखो, प्रोग्राम प्यार से कंपाइल होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्ड कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट करके देख बेटे क्या आएगा। adapt.fill और डेटा सेट स्पेस ds, इसमें सारा खराब क्या यार, हमने से गलती बहुत करी है, जल्दीबाजी के चक्कर में मेमोरी एलोकेट नहीं करी, फिल करा दिया। वहां आ गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट। अंकल अब आ जाइए, देखिए क्या है, कुछ नहीं हुआ, फंक्शन कॉल नहीं हुआ। इसका मतलब अंकल देखिए, अंकल एक चीज गौर कीजिए, इसका मतलब एक चीज गौर कीजिए, एक पॉइंटर से एक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता। अब मुझसे पूछे कंस्ट्रक्टर क्या है, एक पॉइंटर से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए करे, पहले मेमोरी एलोकेट करो। करेगा लो तो करो, बना कंस्ट्रक्टर पब्लिक। इस क्लास की बेटे नॉलेज सर का दिया हुआ है, आप चीजों को समझो प्लीज। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सी आउट बेटा, नाक रगड़ ले, ये कॉल ना होगा। क्यों? मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, क्लास की मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, बट क्लास का रेफरेंस सेट है। और बोल यार, और क्लास का रेफरेंस कौन है बेटे, A1 है। अब बताओ बेटे क्या बोलो, असगर के सामने जाके व्हाट इज कंस्ट्रक्टर मार देगा। और अंकल मुझसे डबल बदतमीज है, भागो यहां से। आना है तो पढ़ के आओ, वो पढ़ा नहीं सकता है बंदा किसी को, आप डाउट लेके आओ ना, हमारा ही। मैं इसको बोलो सर 2 घंटे कैसे पढ़ा दो, कितने पास आना बंद कर देगा ये। और एक एज आता है जहां आप पढ़ा नहीं सकते हो,
वो आपको एक्सपेक्टेशन होता है, क्या होता है कि बंदा अगर मुझसे मिल नहीं आ रहा है, इतना पढ़ गया है। ये मास्टर होता, ये बड़े पुचकार के पढ़ाता। तो ऐसी प्रोफेशन क्या बोलो फैकल्टी वाली, भैया R&D का बंदा डेवलपर है, ये किसी को नहीं पढ़ा सकता, आप डाउट लेकर आओ मेरे पास। तो बोलोगे तुम उस लेवल पे नहीं आए हो, पहले पढ़ के। मैं दीपक होता वो ज्वाइनिंग की क्लास दी, मैंने कहा बेटे एक और क्लास ले ले, मना कर दिया, सर छोड़ो प्लीज। हाउ डेवलपर कैन टेक ए क्लास, कम ऑन यार। He wants लेवल, he wants लेवल कि आपको इतना कम से कम आना चाहिए। तो A1 के पास बेटे एड्रेस है, अब देखना बेटे, अब लो इसको हटा दिया, देखो इसको हटा दिया, फंक्शन पॉइंटर, हमारे पास फंक्शन पॉइंटर है, उस फंक्शन का पॉइंटर है, और फंक्शन और मेरी पॉइंटर एक ही लोकेशन में कौन है बोलो, स्टैक है। यहाँ लिखता हूं सी आउट कॉल, और आप देखिए अंकल क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा बट फंक्शन क्या बोलो कॉल हो जाए। अब देखिए इसको मिनिमाइज कीजिए, कंपाइल कीजिए, इसको बिल्ड कीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। Call the constructor, you have to allocate the memory for whom baby, अरे for a heap यार। अब पूरा कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। करना है तो ये करो। अब आ जाओ अपने C# के कोर्स में, जब मुझसे सीख रहे हो, इक्वल टू क्या करो बोलो, न्यू करो और स्पेस A करो, बस अंतर है यहाँ पे तुम्हारा, न्यू A करो, न्यू A, अरे A की मेमोरी एलोकेट करो, न कि ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट करो मेरे बाप। A की मेमोरी एलोकेट करो, और A1 क्या बोलो, उसका पॉइंटर है। A1 उस पॉइंटर का बोलो क्या है, आपने कार नहीं खरीदी करे, आपने कार खरीद ली, कहीं लगा दी, आप ढक्कन उस कार की बोलो क्या जिंदगी भर सारे पॉइंटर नहीं रहोगे तुम। लोग आपके ऊपर नहीं बैठेंगे, करे कहाँ बैठेंगे बोलो, उस लोकेशन उस कार में बैठेंगे, ढक्कन। क्या पॉइंटर हो, पॉइंटर टू दैट लोकेशन हो, अच्छे इंग्लिश बोल ले, ऑनर टू दैट लोकेशन, ऑनर टू दैट लोकेशन। तो उस एंगल उनसे मिलने में यही डर लगता है कि मुझको थोड़ी सी पूछनी होती है ना, इतना गलत पढ़ के जाना पड़ता है। मैं तो बाल पकड़ के घुमा देते हैं, तू कमाता है आजकल, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, पूरे पंजाबी में क्यों आया, तुमने टाइम यहाँ खराब करने क्यों आया, ऐसे बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। अगर आपको डेलीगेट पूछना है तो डेलीगेट पढ़ के जाओ पहले उनके पास, आप डाउट लेके जाओ, घंटों बैठ जाएगा, R&D का बंदा है, घंटों बैठ जाएगा। अब बोलो पढ़ा दो पॉलीमॉर्फिज्म, गेट खोलेगा नहीं अपना। दास गुड़िया बैठते हैं, दास ही वहां पे, दास ही बैठते हैं, दास है तो वहां का केयर टेकर है। पढ़ाना नहीं है संदीप, पढ़ाने के लिए मेरे पास समय नहीं है यार, तुम लेकर आओ, हम दोनों बहस करते हैं। बोलो तो पढ़ा दो पॉलीमॉर्फिज्म, ये पसंद नहीं, हम निकलेंगे कुछ और करने लाइफ, हॉस्टेल से निकल चुके हैं। आई वांट टू गो फॉर डेवलपमेंट यार, R&D डेवलपर। हाउ डेवलपर कैन टीच फ्रॉम द बेसिक राइट नाउ, बिकॉज़ ही इज इन डेवलपमेंट यार, ही इज इन डेवलपमेंट, उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, ही इज इन डिफरेंट फेज। सो देखो ना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना, वो जो वेरिएबल थी वो क्या हुई बोलो, इस लाइफ ऑल अबाउट द कहानी, कैसा लगा। असल इसी को तुम क्या बना दो, लो बना दिया पॉइंटर। अब इसी को तुम क्या लिख दो, C# में लिख दो बालक, इसको हटा दो कि क्लास तुम्हारी क्या बोलो, रेफरेंस टाइप। ठीक है, नाउ यू कैन गो टू फेसबुक, और उस लोकेशन का ट्रांसलेशन हो गया, मतलब मेमोरी एलोकेट हो गया। हमने प्लान की जगह लूंगा, सड़क जो जगह देखा जाएगा, मैं जगह को लूंगा,
बोलते बुक करा ले यार, बेटा बुक कराने बोलो क्या हो गया, इंस्टेंस हो गया। अब उस जगह पे तुम रह रहे हो, क्या बोलो, इंस्टेंसिएशन है, इंस्टेंसिएटेड है। हमने एक ब्लॉक बना दी, एक बना दी शेप डॉट करके कि हाँ मैं रहूंगा, ये इंस्टेंस है। इंस्टेंसिएशन, मेमोरी एलोकेट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट टू सेट, बड़ी बेटा सेट, मेमोरी एलोकेट नहीं है। सेट मत बोलो, मेमोरी एलोकेट बोलो। कि मेरे जमाने में सेट कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट होते थे। विजुअल